شہلا میری کلاس فیلو تھی. ہم دوسری جماعت میں ساتھ پڑھتے تھے. وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی. اس کے ابو چھوٹی سی دکان چلاتے تھے. یہ دکان انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھول رکھی تھی. وہ بیمار پڑ گئے تو یہ دکان بند ہو گئی. بیماری ایک عذاب ہوتی ہے. یہ غربت سے بھی بڑا عذاب ہے. خدا کسی کو بیماری نہ دے. باپ کی علالت سے گھر میں فاقے ہونے لگے. ان دنوں شہلا کی عمر بمشکل 11 برس تھی. ہم اکٹھے اسکول آتی جاتی تھی. ایک دن اس نے اچانک اسکول آنا ترک کر دیا. وجہ معلوم کرنے میں امی کے ہمراہ ان کے گھر گئی. پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. امی نے سنا تو دانتوں تلے انگلی دبا لی. وہ کہنے لگی خدا کی پناہ یہ غربت کیسی بری بلا ہے. جب بس نہیں چلتا تو معصوم لڑکیاں اس کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں. صالح محمد شہلا کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا. اس کی چچا کمال دین سے دوستی بھی تھی جس کی وجہ سے خیریت پوچھنے اکثر ان کے پاس آ جاتا تھا. یہ شخص رحم دل تھا اور اچھے دل کا مالک تھا. چچا کمال کی بیماری میں ان کی کافی مدد کی. علاج معالجہ بھی کروایا. دور کا رشتہ دار تھا. خواتین پردہ نہ کرتی تھیں. شہلا تو کم سن تھی. وہ یوں بھی پردہ نہ کرتی اور بے دھڑک سامنے آ جاتی. اس شخص کی عمر 40 برس تھی اور کھالوں کا کاروبار تھا جو اچھا جا رہا تھا. بیوی فوت ہو چکی تھی. ایک بیٹی تھی جو بیاہی جا چکی تھی. صالح محمد کی صحت قابل رشک تھی. 40 سال کا ہونے کے باوجود وہ 25 کا لگتا تھا. قد لمبا تھا. شکل صورت بھی اچھی تھی. دوسری شادی کے لیے کافی کوشش کی مگر موزوں رشتہ نہ ملا. جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ شہلا جیسی کمسن لڑکی اس کے لیے موزوں رہے گی. اس کنبے کی غربت پر بھی اس کا دل کڑ رہا تھا. سوچا اگر یہاں رشتہ طے ہو جائے تو معقول مدد بطور داماد کر سکے گا اور یہ لوگ فاقوں سے بچ جائیں گے. شہلا کے 5 بہن بھائی تھے. یہ سب سے بڑی بیٹی تھی. صالح محمد اپنی ماں کو لے آیا جس نے چچا کمال سے بات کی اور واضح یوں کہہ دیا کہ تمہارے کنبے کو میرے بیٹے جیسے داماد کی سخت ضرورت ہے جو ان سب کو سنبھال لے، ورنہ تم خود تو ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو اور بستر مرگ پر ہو. آج ہو کل نہیں ہوگے. تمہاری 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا کیا بنے گا؟ کچھ اس طرح صالح کی ماں نے ہمدردی جتلائی کہ شہلا کے ابو رشتے پر راضی ہو گئے. 1 لاکھ روپیہ اسی وقت صالح نے چچا کمال کے قدموں میں رکھ دیا. یوں یہ کنبہ مرتے مرتے جی اٹھا. شہلا اتنی معصوم تھی کہ اپنی شادی کے بارے میں گھر والوں کی باتیں سنتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اسے خبر ہی نہ تھی شادی کیا بلا ہوتی ہے. ماں پریشان تھی مگر بیمار شوہر کے فیصلے کے آگے کچھ بول نہ سکی. اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا. ایک ماہ میں ہی شہلا کو دلہن بنا دیا گیا. جب بارات آئی یہ بچی اپنی بارات دیکھنے کے شوق میں خود بھی دروازے کے باہر آ گئی. تب کسی بزرگ عورت نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر کے اندر کھینچ لیا. وہ بنی سنوری عورتوں کو دیکھتی تھی جو اس کی رخصتی لینے آئی تھی. یہ عجیب شادی تھی. میں بھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی. وہاں نہ سہیلیاں تھیں اور نہ کوئی رسم ہوئی کیونکہ چچا کمال دین تو چارپائی پر پڑے خون تھوک رہے تھے. وہ عجب وحشت زدہ اور پتھرائی آنکھوں سے ہر کسی کو دیکھ رہے تھے. بڑا بھائی کوئی نہ تھا کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرتا یا والدین سے اس بے جوڑ رشتے پر احتجاج کرتا. قصہ مختصر
गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ उस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार के विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरतजदा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी उसकी नजर रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दूल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और उसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शहला ने उस वक्त गोटे कनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था जो ससुरालियों से दुल्हन का रूप देने को लाए थे, और उसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर उनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लिटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से ना उठी। अम्मा ही घर से खाना पका कर ले जाती और उन सबको खिलाती। जरा हवास में आई तो बताया कि साले मियाँ उनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और उनकी बेटी का हक मेहर वो अलग देंगे। यानी बेटी की शादी की खुशी रचाकर उन्होंने उस मासूम को बेचा था, क्योंकि 3 लाख रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। बारात के साथ शहला की खाला गई थी। उसने आकर बताया कि जब कार साले के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के इस बकरे की इस्तकबाल में लग गए। वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे जला रहे थे। मकान काफी बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दूल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को भोलपन से देखती थी। तभी साले की बहन उसके पास बैठ गई और समझाने लगी, देखो ये कमरा तुम्हारा है। ये चीजें, कालीन, सिंगार मेज सब तुम्हारे लिए है। कार भी है जिस पर तुम रोज सैर करोगी। अपनी अम्मी के पास जाओगी ना। माँ का जिक्र आते ही शहला बेचैन हो गई। वो बेकरार होकर इधर उधर देखने लगी। या अल्लाह, ये क्या? हुजूम के शोर में समझ ही ना सके क्या हो रहा है। कार में बैठकर किधर आ गई है। छोटे बहन भाई छोड़, बीमार अब्बा से ओझल, प्यार करने वाली माँ से दूर, सोचे उसको परेशान करने लगी। वो इधर उधर देखती, अपनों को ढूंढती, यकदम फूलों की सेज से उठने लगी। नंद ने बाजू से पकड़कर दोबारा सेज पर बिठा दिया और जेठानी उसे सर पर दुपट्टा उड़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हारे हैं। घर वालों को याद नहीं करना, वो कल आ जाएंगे, बस आज का दिन नहीं आ सकते। वो फिर नहीं गई। इधर उधर देखने लगी, कमरे की हर शय को घूरने लगी। जब सहेलियों के घर जाती थी ये सब चीजें दिखती थी। सोचती थी कि कहां से आ जाती हैं ये चीजें, उनके घरों में और मेरे घर में क्यों नहीं। ये फ्रिज, ये टीवी, ये सिंगार मेज और इसमें रखा हुआ ये सामान, और अब ये सब कुछ यहाँ मौजूद था। ये सब कह रहे थे रोना नहीं, उदास मत होना, ये सब चीजें तुम्हारी हैं। मेरी हैं तो फिर मेरे माँ बाप के घर क्यों नहीं है। अगर ये सब मेरे घर पहुंचा दें तो हम भी अमीर हो जाएं। थोड़ी देर वो बोली, मगर जब रात हो गई तो घर वाले याद आ गए। ये सारी चीजें हैं मगर माँ बाप तो नहीं है। वो अपनी नंद से पूछने लगी, घर कब जाएंगे? मुझे अम्मा के पास जाना है। जिद करने लगी, नहीं अभी चलो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, वापस घर जाऊंगी। साले मोहम्मद की बहन का दिल भर आया। उसने नन्ही मुनी गुड़िया को बाहों में भर लिया। समझाने लगी,
तुम्हारी शादी हो गई है, अब यही तुम्हारा घर है, तुम अब ससुराल में हो। कल तुम्हारी अम्मी बहन भाई आ जाएंगे तुमसे मिलने, घबराओ मत। मेहमान अभी तक घर में थे, औरतें दुल्हन देखने कमरे में घुसी आ रही थी। नंद तब जल्दी से उसका घूंघट डालने लगती और पर्स हाथ में देकर कान में कहती, सर झुकाकर बैठो। मासूमियत गजब ढा रही थी। जो औरत देखती दिल थाम कर कहती, हाय अल्लाह, इतना जुल्म। रात के 10 बज गए। शैला पर थकन से गुनूद की तारी होने लगी। तब उसकी नांद और जेठानी ने औरतों को कमरे से बाहर धकेल दिया और दूल्हा अंदर आ गया। उसने आते ही दुल्हन को खूबसूरत जेवरात का सेट दिया, मगर अब वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। उसे नींद आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। साले मोहम्मद उसे एक बात ना कर सका। हालांकि वो उसको समझा रहा था कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उठो, देखो कितने खूबसूरत जेवर तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो सो चुकी थी। सोती हुई बच्ची पर साले को रहम भी आया और प्यार भी। उसने माँ से कहा, अम्मा तुम इसके पास सोए रहो, मैं बैठक में सो जाता हूँ। अगले दिन उठते ही उसने इधर उधर झांका, फिर माँ को पुकारने लगी। तभी सास ने समझाया, बेटी ये तेरा घर है, माँ भी आती होगी, मगर वो अपने घर से आएगी तेरे घर तुझसे मिलने, और माँ का घर तेरा घर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। उसने सास का हाथ झटका और फिर माँ को पुकारने लगी। तब नंद ने आकर उसको बहलाया और नाश्ता अपने हाथ से कराया, फिर नहला धुलाकर सजा दिया, दोबारा दुल्हन बनाकर बिठा दिया। दोपहर के बाद हम तुमको सैर कराने ले जाएंगे। साले तुमको बाजार ले जाएगा, जो शय तुम्हारा दिल चाहे खरीद लेना, और फिर कार पर अपनी माँ के घर चली जाना, ठीक है? हाँ। उसने इस बात में सर हिला दिया, जैसे सब कुछ उसकी समझ में आ गया हो। माँ और बहन ने साले को समझाया कि ये बहुत कम उम्र है, कुछ दिन उसको बिल्कुल तंग ना करना, बल्कि जो कहे वही करना। हम सब इकट्ठे घूमने फिरने जाएंगे ताकि शैला हमसे मानूस हो जाए। अब वो रोज शाम को कार पर सैर करने जाते, शैला को चीजें खरीद कर देते, तोहफे लाते। वो बच्ची थी, खुश होती थी इन बातों से। उन्होंने उस पर कोई दबाव न डाला। रात को सास अपने पास सुलाती थी, दिन को नंदे हाथों में हाथ लिए रखती थी। यूं रफ्ता रफ्ता खौफ व अजनबियत दूर हो गई। वो उसको हर दूसरे तीसरे दिन मैके भी लिए जाते थे। 4-5 घंटे बहन भाइयों में रहकर आती तो खुश रहती। वक्त धीरे धीरे आगे सिरकने लगा। ये अच्छे लोग थे। उन्होंने ननी मुनी शैला को इतने प्यार से रखा कि वो घर वालों को भूल गई, और उसको समझ में आता गया कि शौहर और बीवी में क्या रिश्ता होता है और ससुराली कौन लोग होते हैं। साले उसका इतना ख्याल रखता कि वो उससे प्यार करने लगी। लोगों ने बहुत बातें की, इस जुल्म के बारे में कानों को हाथ लगाते, मगर शैला के माँ बाप खुश थे। उनके तमाम खदशात मिट गए थे। साले अमीर आदमी था, उनका ख्याल था इस तरह उनकी बेटी की किस्मत चमक गई थी। वो अपने ससुराल के हर फर्द के लिए फरिश्ता रहमत बन गया। ससुर का इलाज कराया, बरादर निस्बती को दुकान खोल कर दी, और ससुर के बाकी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया। उस मुर्दा कुंबे में उसके पैसे ने जान डाल दी थी। क्या अजीब कहानी थी। उम्र रसीदा शौहर को कमसिन बीवी इतना चाहती थी कि जमाना हैरत ज़दा था। कोई शैला की खावत को उम्र रसीदा कहता तो ये उस पर चीख पड़ती थी। खुदा ने शादी के 6 साल पहले बच्चे से भी नवाज दिया। फिर तो ऊपर तले वो 4 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों को दादी और फूफी ने पाला, क्योंकि वो बच्चों को उठाती थी तो उनकी माँ नहीं लगती थी। मैं शैला से मिलने गई तो वो बहुत खुश थी।
शौहर बड़ी उम्र का था मगर वो उसे बहुत चाहती थी क्योंकि उसने शैला के घर वालों के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें फाकों और बीमारियों से बचाया था, उनको नई जिंदगी दी थी। शैला अपने खामद का हर हुक्म मानती थी और दिलो जान से खिदमत करती थी। शौहर के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। मैं उसे फूले न समाते देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत तो थी ही, ऐशो आराम की जिंदगी ने उसे और हसीन बना दिया था। 4 बच्चों की माँ लगती न थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शैला की शादी को 20 बरस हो चुके थे। वो 28 बरस की हो गई थी और अब भरपूर जवान औरत थी। उस पर जवानी के साथ जोबन और रूप तो अब आया था, लेकिन उसका शौहर उन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी वो उम्र रसीदा नहीं लगता था, मगर सुस्ती और इज़्मेहलाल उसकी ढलती उम्र की चुगली खा रहे थे। अचानक एक रोज वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज वो रात का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हुआ तो नींद में मौत ने गले से लगा लिया। जाने शब के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और साले मोहम्मद वफात पा गया। सुबह जब हस्ते मामूल बेदार ना हुआ तो शैला ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता। शैला ने शौहर का जवाब ना पाकर कई बार उसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोशी थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीख मार कर बेहोश हो गई। शौहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि शैला को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रहकर वो फौत हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 32 बरस छोटी शैला अपने शौहर साले मोहम्मद से इस कदर वालेहाना प्यार करती थी कि वो उसकी वफात का सदमा भी बर्दाश्त न कर सकी और खाले की हकीकी से जा मिली। दोनों साथ साथ लहद में चले गए। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने ना देखा होगा। मरने के बाद भी साथ निभा रहे थे। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्कबार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी। फिर 20 बरस की रफाकत से वो उसकी दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। उसके बच्चों की माँ थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। मेरी सहेली में कितनी खूबियां थी, गिनवाने बैठूं तो गिनवा नहीं सकती। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। आज तो शादियां खेल और तलाकें आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी अनहोनी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। इन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को एक मामूली रिश्ता गर्दाना जाता है। मामूली बात पर अलहदगी और तलाक के केस आम है। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मिजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो इस बात पर तलाक हो जाते हैं। उम्रों का फर्क तो बड़ी बात है। रंगत के फर्क पर जीवन साथी को खुदा हाफिज कहते नहीं झिझकते। शहला ने तो खुद से 20 बरस बड़े शख्स के साथ जिंदगी के 20 बरस ऐसे गुजारे थे जैसे कोई जन्नत में जिंदगी गुजारता है। मगर जिस तरह शैला ने समझौता किया और जिंदगी हंसकर गुजारी, उस पर दुनिया हैरत में थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र और तदब्बुर की मिसाल नहीं मिलती। शहला के बच्चे आज भी अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। फूल उसकी लहद पर निछावर करते हैं कि ऐसी बेमिसाल माँ सिर्फ उनकी है।